Hello friends, today in this video we are going to discuss the solution of elements of direct tax, all the MCQ with a detailed answer, why this answer, what is the reason behind this answer, all those things we are going to discuss in this video. And this is going to be very useful for your future purpose also, because this will clarify your concept, some of the concept of direct taxes, and these MCQs are very important. Now let's start our lecture. What is the answer for first? Mr. Arun borrowed rupees 5 lakh at 12% per annum on April 1, 2018 for construction of house property, which was completed on March 15, 2022. The loan amount is still unpaid. The deduction of interest for previous year 2022-23 shall be. So here, what is the interest available? So here, very simple calculation. That means what? Here you are taking loan for of 5 lakh at 12%, and construction loan was taken on April 1, 2018. So you have to consider 18-19, that is your first previous year, and construction is completed on March 31, 2022, and you know the construction pre-construction period. Here pre-construction period is starting from 1st April 2018 to date of 31st March, immediately prior to the date of completion of construction, and construction is completed on March 15, 2022. Now what you have to take, you don't have to consider this date, because you have to consider 31st March immediately prior to this date, means इसका 31st March आएगा 31st March 2021. So this is your pre-construction period. So in this period total 18-19, then comma 19-20 and 20-21, 3 years pre-construction period interest is covered. So total interest is equal to, per year how much interest? 60,000. 60,000 multiply by 3, so that is 1,80,000 plus current year interest 60,000. But before doing current year interest, you have to divide it by 5. Why? Because pre-construction period interest is allowed as a deduction in 5 equal installment. So if you divide 1,80,000 by 5, you will get 36,000. And 36,000 in year, in this you have to add current year interest also. And current year interest is 60,000, that is available. So total 96,000 is available as a deduction for the previous year 22-23. So in this case 96,000 will be your answer. So this is a complete understanding, because just answer, you are not in a position, by giving the answer you are not in a position to understand the concept properly. So that is why here you have to first of all find out pre-construction period, and interest of pre-construction period is available in 5 equal installment, and then current year interest also available. So total 96,000 is available as a interest on deduction. Now second one, which of the following statement is incorrect? So here focus on the word incorrect. That means all three statements are correct, only one sentence is wrong. Income tax is to be charged at the rate fixed by the year by the Annual Finance Act. This is a correct here, because income tax is charged by every year. Annual Finance Act will come and that will decide your tax rate. In case of duty, person pays tax and then he may earn income by selling the product. This is also correct statement, because in one of the video I explained the difference between duty and taxes. In taxes, first of all, what is the difference between tax and duty? You can watch my video. I will provide the link in I button, and you can go there and refer the full detail about that concept. Deduction can be less than or equal to or more than amount of income. This is a also correct statement. Surplus from mutual activity is chargeable to tax as per the broad principle of income. This is wrong, because surplus from mutual activity is not chargeable to tax. It is not considered as a income at all. So that is why what your answer will, here in this case your answer is D. बहुत easy है ये,
surplus from mutual activity chargeable to tax as per the broad principle of income. So you have to understand the full concept. Now next one, Mr. Jad owns a flat in Mumbai which was let out by him in previous year 2023 22 23 on a rent of rupees 20,000 per month up to December 22, then 30,000 per month thereafter. The annual municipal value is 3 lakh. Fair rent is 2 lakh 50,000. Standard rent is 2 lakh 90,000. Gross annual value of the flat shall be taken as. So here also this is very simple. From these two value, municipal valuation and fair rent, what is the rule? MV or FR, whichever is higher. So higher value is 3 lakh. So 3 lakh is compared with standard rent 2 lakh 90,000. Now in this case, your first answers cannot be more than SR. Your what is the step? MV or FR, whichever is higher but subject to SR. So you have to take SR in this case. So 2 lakh 90,000. But what is your second step? Actual rent received or receivable after deducting unrealized rent but before adjusting loss due to vacancy. So here actually how much rent you are receiving up to December 20,000, then 30,000. So if you calculate number of months from April to December, it will come to 9 months, and then January, February, March, the rent is 30,000 per month, that is 3 months. So now 2,70,000 and here 90,000. So total answer is, sorry, here 1,80,000 will come. So 1,80,000 and 90. What it will make? Your answer is 2,70,000. So 2,70,000 and 1 lakh, 2,70,000 and 2,90,000. This is step 1 and step 2. Now you have to select step 3. And what is step 3? Step 1 or step 2, whichever is higher. So step 1 is higher. So 2,90,000 will become your answer. And here unrealized rent and loss due to vacancy is not given. So automatically nothing will be deducted in step 4. Loss due to vacancy. Now what is your answer? 2,90,000. So in this case 2,90,000 will become your answer. Miss Sitara receives family pension of rupees 15,000 per month. So 15,000 multiplied by 12. So 1,80,000 will come. Now here in case of family pension you will get fixed deduction of 15,000 or 1/3 of pension received. So 1/3 of 1,80,000, whichever is lower. So from these two, if you make 1/3 of it, that then it will come to 60,000. So 15,000 and 16,000, 60,000, whichever is lower, 15,000. So here you will get deduction of 15,000. So now if you deduct 1,80,000 minus 15,000, you will get 1,65,000. So in this case 1,65,000 will become your answer. So this is the limit you have to keep in mind, then only you can solve the problem. Now 5. Mr. Jai is an Indian citizen, visited India during previous year 22-23 for 30 days. His total income excluding foreign source income is 15,60,000. So this is total income other than foreign source. He is not paying tax in any other country due to his domicile. Now determine his residential status for assessment year 23-24. अब ये सिंपल है कि वो 30 डेज के लिए ही इंडिया में आया है और इज नॉट फॉरेन इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इज 15,60,000. यहाँ पे एक लिमिट है कि अगर फॉरेन इनकम के अलावा उसका इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम के अलावा उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा है और किसी और कंट्री में वो टैक्सेबल नहीं है, तो इसका मतलब उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा. तो इस केस में इसका आंसर आएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया आ जाएगा. ये सिंपल है बिकॉज यहाँ पे क्या पर सेटिस्फाई हो गया कि वो इंडियन सिटीजन था, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. फिर इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आया था और यहाँ पे डेज इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे पहली बात इंडियन सिटीजन है वो जरूरी था, दूसरी बात उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, एंड वो दूसरी कंट्री में ड्यू टू हिज डोमिसाइल टैक्सेबल नहीं होना चाहिए. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है
तो फिर अब नंबर ऑफ डेज इंपॉर्टेंट नहीं करता, यहाँ पे मैटर नहीं करता, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा. Now next one, sixth MCQ. Ravi was born in Chennai in 1992. Later on, he migrated to Canada in June 2016 and took the citizenship of that country with effect from December 26, 2021. His parents were born in Bengal in 1916. His grandparents were born in India in 1946. That means Mr. Ravi is Indian origin because his grandparents were born in undivided India. तो यहाँ पे मिस्टर रवि कौन हो गया, इंडियन ओरिजिन हो गया. अब ही कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग 22-23 फॉर विजिट ऑफ 115 डेज. अब देखो यहाँ पे ये विजिट पर्पस के लिए आ रहा है एंड ड्यूरिंग अर्लियर 4 years उसका स्टे इंडिया में 400 डेज है. नाउ व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ रवि फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24. यहाँ पे इनकम का कोई बात नहीं बताया कि वो इंडिया में इंडियन इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज कितना है. इसका मतलब हमें सिर्फ इसी के बेसिस पे से आंसर लेना पड़ेगा कि कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस, तो उस केस में हमें सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता. जो भी डिसीजन लेना होता है वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन, एंड फर्स्ट बेसिक कंडीशन है ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए तभी वो रेसिडेंट बनता है, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बन जाता है. और यहाँ पे स्ट्रेट वे बोल दिया है कि वो इंडिया में कितने दिन के लिए प्रेजेंट था, 115 डेज. अब उसको सेकेंड बेसिक कंडीशन तो वो सेटिस्फाई करता है बट वो हमें देखना ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी ये नहीं बना, बट नॉट ऑर्डिनरी भी नहीं बना. इसका आंसर आएगा नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. Now, next one, which of the following is not falling under deemed owner under section 27. यहाँ पे अंडर सेक्शन 27 में कौन सा पर्सन डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा. तो सिंपल है, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज और हर स्पाउस, तो ये तो इस केस में इंडिविजुअल जो ट्रांसफर कर रहा है वो डीम्ड ओनर बन जाएगा अंडर सेक्शन 27. तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. फ्लैट इज अलॉटेड बाय कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी टू इट्स मेंबर, तो भी वो डीम्ड ओनर बन जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी जिस मेंबर वो डीम्ड ओनर माना जाता है इसमें. एक्स हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years to वाई, तो इन दिस केस आल्सो वाई विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड ओनर. एक्स ओन्स ए प्रॉपर्टी, ही यूजेस द प्रॉपर्टी एज हिज ऑफिस फैक्ट्री और गोडाउन, ये डीम्ड ओनर नहीं है बिकॉज ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर ऑफिस पर्पस फैक्ट्री और गोडाउन. सो दैट इज वाई section 27 is not applicable in option D. So option D is your correct answer. Now next one, the head office of XY, a Hindu undivided family situated in Hong Kong. The family is managed by Y since 1980, who has been resident in India for 3 out of 10 years immediately preceding the previous year in 2022-23, and who has been present in India for more than 730 days during 7 years. That means what is the residential status of family for the assessment year 23-24 if the affairs of the family of business are partly controlled from India. That means what, यहाँ पे पहला आपको ये जानने का है कि ये जो HUF फैमिली है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो वो हमें पता चलेगा उसका कंट्रोल कहाँ से है. तो यहाँ पे पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, मीन्स ये रेसिडेंट तो बन गया. अब आपको रेसिडेंट बनता है तो कर्ता का पोजीशन जानना पड़ेगा. कर्ता मस्ट सेटिस्फाई 2 एडिशनल कंडीशन, दैट मीन्स एटलीस्ट 2 out of 10 years में वो रेसिडेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि कर्ता जो मैनेज करता है बिजनेस को वो 3 out of 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रेसिडेंट इन इंडिया था, और वो इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा लास्ट 7 years में इंडिया में होना चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई कर लेता है. मीन्स बोथ द एडिशनल कंडीशंस आर आल्सो सेटिस्फाइड. तो इस केस में इसका आंसर क्या बनेगा, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि HUF में आपको आगे चेक करना पड़ता है एडिशनल कंडीशन HUF एंड इंडिविजुअल में, बाकी सब में सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होता है. नाउ नेक्स्ट वन, X Limited is an Indian company. It has 10 shareholders who are foreign citizen and non-resident in India. The business of the company is fully controlled from outside India. What is the residential status of
एक्स लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। यहाँ पे सिर्फ इतना ही जरूरी था कि देखो एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट इन इंडिया ही होती है और बाकी की इंफॉर्मेशन अब इतना मैटर नहीं करती। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इतना ही लिखना है, रेसिडेंट इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट वन, Mr. X has taken two loans for the purpose of construction of two house properties and construction is completed within 4 years. Construction 4 years में complete हो चुका है. The first loan was taken in 1997 and interest on it is 2,30,000, and second loan was taken in 2015 and the interest on is 1 lakh in the previous year. How much deduction is available under section 24B to Mr. X if both the properties are self-occupied? अब यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। वो भी बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपने लोन कब लिया है। अगर आपने लोन 1999 के बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख, और उससे पहले में लिया है तो 30,000। तो यहाँ पे दो लोन लिया है, एक लोन लिया है 1997 में, उस पर इंटरेस्ट है 2,30,000। इसका मतलब यहाँ पे आपको 2,30,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 30,000, क्योंकि लोन आपने 1997 में लिया था। दूसरा जो लोन लिया है वो 2015 में यानी 1999 के बाद लिया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है, बट आपका इंटरेस्ट सिर्फ 1 लाख ही है, तो उतना 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो टोटल डिडक्शन हुआ 1,30,000 का। अब यहाँ पे टोटल मैक्सिमम लिमिट 2 लाख था, दैट डजंट मीन आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपका टोटल इंटरेस्ट दोनों को मिला के 1,30,000 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2,30,000 था बट आपको डिडक्शन मिलेगा 30,000 का। यहाँ पे 1 लाख था बट आपको डिडक्शन पूरा 1 लाख मिलेगा, तो टोटल हुआ आपका 1,30,000। तो इसके हिसाब से सी आपका आंसर बन जाएगा 1,30,000। नाउ नेक्स्ट वन, ये सेम है, मिस्टर एक्स हैज टू प्रॉपर्टीज एंड बोथ द प्रॉपर्टीज आर लेट आउट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी सिर्फ लेट आउट है। अब देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट है, बट अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो आपने लोन कब लिया है, कितना इंटरेस्ट है, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट है, देखो यहाँ पे एक इंटरेस्ट है 1,25,000 का, दूसरा इंटरेस्ट है 1 लाख का, और प्रॉपर्टी लेट आउट है, इसका मतलब आपको 24B में दोनों का प्लस करोगे तो मिल जाएगा 2,25,000, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी लेट आउट है। तो अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है। नाउ एक्स रिसीव्स ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन जनवरी 11, 2023 अंडर ए विल। यहाँ पे देखो विल में प्रॉपर्टी मिला है। अब आगे प्रॉपर्टी कोई भी अगर विल में मिलता है तो अब उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15,40,000 था, और यहाँ पे शायद कोई स्टूडेंट्स गलती कर दे यहाँ पे कि वो पूरा 15,40,000 टैक्सेबल कर दे, बट अगर आपको कोई एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है कि प्रॉपर्टी अगर विल में मिला है, रिलेटिव से मिला है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। इसलिए इस केस में आपका डी आंसर बन जाएगा नील। नथिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। एकदम सिंपल है यहाँ पे, और कंफ्यूज हो जाएगा तो वो 15,40,000 कर देगा। The Kapoor HUF in Maharashtra comprises of Mr. Sanjeev Kapoor, his wife Mrs. Neena Kapoor, his son Mr. Deepak Kapoor, his daughter-in-law Mrs. Dipti Kapoor, his daughter Miss Preeti Kapoor, and his unmarried brother Mr. Gautam Kapoor. Which of the following of the HUF are eligible for co-partnering right? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक वीडियो बना के दिया है कि व्हाट इज HUF, आप उसमें जाके देख सकते हो। आपको आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किसको को पार्टनरी राइट है। तो आपको यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र का है, मीन्स यहाँ पे कौन सा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो होता है, कि यहाँ पे ऐसा स्कूल ऑफ थॉट होता है, एक दयाबागा है और एक मितास्क्रा है। मितास्क्रा में रेस्ट इन इंडिया जैसा कंसेप्ट फॉलो होता है। तो इसमें जो भी HUF के लीगली लीनियरली डिसेंडेंट है वो सबको राइट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका बी आंसर बनेगा कि ओनली मिस्टर संजीव कपूर, मीन्स ये वाला, इसका वाइफ मिस्टर गौतम कपूर, मिस्टर दीपक कपूर एंड मिस प्रीति कपूर, इन लोगों को राइट मिलेगा को पर्सनली राइट, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। देखो आप समझो यहाँ पे संजीव कपूर कौन है, तो क्या मिस्टर संजीव कपूर जिसने HUF बनाया है, देन हिज सन मिस्टर दीपक कपूर, एंड गौतम कपूर कौन है, उसका ब्रदर है। तो गौतम कपूर
उसका ब्रदर है इसलिए उसको भी राइट मिलेगा। मिस्टर दीपक कपूर जो उसका सन है उसको भी राइट मिलेगा। मिस प्रीति कपूर जो मिस्टर दीपक कपूर की डॉटर है उसको भी राइट मिलेगा। तो किसको राइट नहीं मिलेगा को पार्सनरी राइट का? क्योंकि उसकी वाइफ को नहीं मिलेगा, फिर डॉटर इन लॉ को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो दूसरी फैमिली में को पार्सनरी राइट उनके पास है। इसलिए सिर्फ ओनली मिस्टर संजय कपूर, मिस्टर गौतम कपूर, मिस्टर दीपक कपूर एंड मिस प्रीति कपूर ये सबको को पार्सनरी राइट मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था आपको आपके लिए। Now Mr. Y received a gift from his four friends on 2nd February 2023 of rupees 25,000 each. यहाँ पे सिंपल है कि हर एक फ्रेंड से 25,000 मिलता है, तो 25,000 into 4 that means 1 lakh. So you have received gift of rupees 1 lakh. तो इसका मतलब फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है, टोटल एग्रीगेट अमाउंट देखा जाता है, इंडिविजुअल अमाउंट नहीं देखा जाता, इसलिए 1 lakh इज मोर देन 50,000, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो बी विल बिकम योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट वन, मिस्टर मिस बार्बी टेक्स लोन of rupees 17,50,000 on 1/10/2020 for construction of house property. The date of completion of construction is 31st May 2023. Moreover, the date of repayment of loan is 22nd December 2022. What would be the pre-construction period in the given condition? देखो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना, आपको 3 डेट पे हमेशा कंपैरिजन करना पड़ता है। एक डेट ऑफ बोरोइंग, तो डेट ऑफ बोरोइंग जो है यहाँ पे इस केस में 1/10/2020 है। फिर आपको 2 डेट्स में से एक डेट सिलेक्ट करना पड़ता है। एक कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 31st मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31st मई 23 को। अब आपको उसका प्रीवियस डेट देखना है, तो 31st मार्च 2022 आएगा, और लोन का रीपेमेंट हुआ है 22nd दिसंबर 2022। तो इसमें से यहां से स्टार्ट होगा वो कंफर्म है। अब एंड कहां पे होगा, 31st मार्च 22 में या 22nd दिसंबर 22 में, तो विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे कंसेप्ट है विच एवर इज अर्लियर। तो 22nd दिसंबर 22 जल्दी आएगा, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1st अक्टूबर 2020 टू 22nd दिसंबर 2022। तो ये वाला आंसर आपका राइट बन जाएगा। Now next one, Alice takes a loan of rupees 30 lakh at 10% per annum for construction of house on 1/10/2019. The construction of house is completed on 31st December 2022. The date of repayment of loan is 1/7/2022. Compute the amount of interest deductible in the previous year to 22-23. Assume house used by him throughout the year for his own residence, means property is self-occupied. और जब भी आप लोन 1999 के बाद लेते हो तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलता है, वो आपको याद रखने का है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लोन दिया है 30 लाख का, और उसका यहाँ पे आपको 2 इंटरेस्ट मिलेगा। 30 लाख का अगर आप 10% भी करते हो तो 3 लाख हो जाएगा, और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो अलग बात है। यानी यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो 2 लाख से तो ज्यादा ही आएगा। एक तो करंट ईयर इंटरेस्ट 3 लाख तो आएगा ही, और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भी आएगा। वो हम अभी कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि उसके बिना ही हमें आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि देखो 3 लाख तो करंट ईयर का ही इंटरेस्ट है, और प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट आप ऐड करोगे तो ये अमाउंट ज्यादा ही आएगा। बट अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये सारा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और आपको पेपर लेंदी लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा ट्रिक दिया है कि आप विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप सारा आंसर दे सकते हो। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 2 लाख, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटेड 2 लाख है, तो फिर 3 लाख या उससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एक्स रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ मोटर कार फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे मोटर कार का गिफ्ट मिलता है और वो प्रॉपर्टी की लिस्ट में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ भी नहीं, नील, बिकॉज प्रॉपर्टी की लिस्ट में शेयर्स एंड सिक्योरिटी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, बुलियन, ड्राइंग, ये सब आता है, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग भी आता है। तो ये मोटर कार है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी की लिस्ट में नहीं आता, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया है
उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो ही हमें गिफ्ट का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज गिफ्ट का कंसेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होता। तो वापस एक बार बोल देता हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा, यहाँ पे लिखा गया है वही आता है। उसके अलावा कोई भी गिफ्ट मिलता है तो सेक्शन 56 एप्लीकेबल नहीं होता। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कोई कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए नील आएगा टैक्सेबल। मिस्टर ए रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट ऑन बर्थडे on 29th of September 2022. Cash gift from elder brother 36,000, not taxable. Why not taxable? Because it is received from relative, तो ये not taxable हो जाएगा। Now second gift he has received 46,000 from friend, ये taxable है, but इसका अमाउंट है ना 50,000 से ज्यादा नहीं है और टोटल दो ही गिफ्ट है, तो टोटल यहाँ पे आपको 46,000 का गिफ्ट मिला है जिसका अमाउंट 50,000 से कम है, इट इज लेस देन 50,000, मीन्स यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एक इसलिए टैक्सेबल नहीं हुआ क्योंकि रिलेटिव है, दूसरा टैक्सेबल होते हुए भी टैक्सेबल नहीं हुआ क्योंकि उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट पूरे साल में 50,000 से ज्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या टैक्सेबल आएगा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं आएगा, नील आएगा यहाँ पे आंसर 18 में। नाउ नेक्स्ट वन, मिस्टर बी रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। देखो यहाँ पे एक क्लियर कट बात बोल दी है कि उसको मैरिज में मिला है। अब कोई भी गिफ्ट यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होने वाला क्योंकि कोई भी गिफ्ट अगर मैरिज में मिलता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। अब यहाँ पे रिलेटिव से मिला है, ग्रैंडफादर से मिला है, नॉन रिलेटिव से मिला है। यहाँ पे ये गिफ्ट है जो नॉन रिलेटिव से मिला है और पहला वाला गिफ्ट है जो रिलेटिव से मिला है। तो कई स्टूडेंट्स उसको 20 लाख आंसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये नॉन रिलेटिव और ये रिलेटिव है, तो रिलेटिव है तो नॉट टैक्सेबल, बट नॉन रिलेटिव है तो उसको टैक्सेबल कर देंगे, बट गलत हो जाएगा बिकॉज ये स्पेशल ओकेजन है और ओकेजन, ये मैरिज के ओकेजन पे कोई भी गिफ्ट मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो आता ही नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है बट वो मैरिज है इसलिए वो टैक्सेबल नहीं आता। नाउ नेक्स्ट वन, जैन जेड, अ फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, comes to India for first time on April 16, 2018. During the financial year 18, 19, 19, 20, 2021, 21, 22 and 22, 23. This is our previous year for this paper. He is in India for 219, 90, 45, 310 and 730 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 23, 24. तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर में ये इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन नहीं है और ये फॉरेन सिटीजन है। इसका मतलब दोनों बेसिक कंडीशन, पहला 182 डेज वाला और दूसरा है 60 डेज वाला, 60 एंड 365 दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होगा। पहला सेटिस्फाई नहीं करेगा बट 60 एंड 365 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में वो 73 डेज के लिए है, तो ये पार्ट सेटिस्फाई हुआ। 365 मीन्स अगर आप पिछले 4 सालों का टोटल करोगे तो 290, 90, 45 एंड 310, तो बट ऑब्वियस है कि इसका आंसर 365 से ज्यादा आएगा। अब आपको एडिशनल कंडीशन पे चेक करना है कि क्या वो 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स में रेसिडेंट इन इंडिया था। तो देखो यहाँ पे एक 310 वाला था, वहां पे भी रेसिडेंट आएगा और ये 290 है वहां पे भी रेसिडेंट आएगा क्योंकि अभी 182 से ज्यादा है और यहाँ पे भी 182 से ज्यादा है, तो 2 साल के लिए तो रेसिडेंट बन गया। अब पिछले 7 ईयर्स में उसका टोटल 730 डेज से ज्यादा था, तो हाँ उसका टोटल यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो ये 730 से तो ज्यादा ही आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो 20 में आपका आंसर बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट वन, मिस्टर एक्स इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखो यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। करंटली ही इज एम्प्लॉयड विद एमएनसी multinational company in Finland. During the previous year 22-23 he came to India for 140 days. In earlier 4 year he was in India for more than 450 days. ये एक्सेप्शन 4 है क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आता है और यहाँ पे देखो आपको दिखा है कि इंडियन ओरिजिन है, वो एमएनसी में मल्टीप्लाइड था, एम्प्लॉयड है एंड प्रीवियस ईयर 22-23 में वो इंडिया में आता है 140 डेज के लिए। इन अर्लियर 4 इयर्स वो 450 डेज से ज्यादा था। ही हैड नॉन फॉरेन एनुअल इनकम ऑफ 17 लाख, यानी उसका इनकम 15 लाख से ज्यादा था।
for the previous year 22-23. What is his residential status for the assessment year 23-24? अब आपको देखो यहाँ पे 4-5 एक्सेप्शंस का कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पहले वो इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, तो है वो इंडिया में उसका जो इनकम है अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है। दूसरा तीसरा कि वो इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे वो इंडिया में विजिट पर्पस, आउटसाइड इंडिया में था, अब इंडिया में विजिट पर्पस के लिए आ रहा है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तो यहाँ पे वो 140 डेज के लिए आता है इंडिया में, तो 125 डेज एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो पिछले 4 सालों में उसका डेज 365 से भी ज्यादा था। इसका मतलब चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया उसने। इंडियन ओरिजिन भी था, उसका नंबर ऑफ स्टेज इन इंडिया 120 एंड 365 था, उसका इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा था, और इंडिया में वो विजिट पर्पस के लिए आ रहा है। इसका मतलब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ एक ही बनता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन 22 X Limited is incorporated in Germany. Gross annual value in the previous year 22-23 61 करोड़। यहाँ पे कंपनी का जब भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हो तो उसका एनुअल टर्नओवर मैटर करता है आपके लिए, तो यहाँ पे एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ये 50 करोड़ से तो ज्यादा ही है। It has 20 shareholders as Indian citizen who are resident in India. The company has no active business in Germany. एक्टिव कोई बिजनेस नहीं है जर्मनी में, ये फॉरेन कंपनी है क्योंकि जर्मनी में इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो ये फॉरेन कंपनी है। अब बिजनेस ऑपरेशन आर मेनली फ्रॉम कोरिया, श्रीलंका इन इंडिया। द कंपनी इज मैनेज बाय अ टीम ऑफ प्रोफेशनल फ्रॉम इंडिया, यानी इसका आप यहाँ पे बोल सकते हो कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से है। अब यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए, क्योंकि कंपनी में सिर्फ दो ही स्टेटस होता है, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे उसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये 61 करोड़ है। उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्टेटस बन जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ये ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नाउ XY and company a firm which is having gross annual turnover is rupees 25 crore इन द प्रीवियस ईयर 22-23। यहाँ पे फॉर्म है, हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब डी फैक्टो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर्म इज पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया एंड पार्टली सिचुएटेड इन यूएसए। अब देखो पार्टली इन इंडिया है, पार्टली आउटसाइड इंडिया है, तो इसमें कम फॉर्म में भी दो ही स्टेटस होता है, या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि पार्टली इन इंडिया है, इसका मतलब इसका स्टेटस बन गया रेसिडेंट इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बनने का कोई चांस नहीं है। ये कब बनेगा, जब फुल्ली आउटसाइड इंडिया हो तभी वो नॉन रेसिडेंट बनता है। नाउ नेक्स्ट वन 24 अंडर डैश द बोरोवर डज नॉट पे प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट टू द लेंडर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये रिवर्स मॉर्गेज जो स्कीम है उसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों को पेमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पूरा आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा, आप उसको देख सकते हो। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम क्या है उसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको देख सकते हो, या मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। देखो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल इन बांग्लादेश 1,80,000, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से 1,80,000 का इनकम हुआ। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कंपाला युगांडा कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली 60,000 एंड डिविडेंड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया 40,000। तो तीन इनकम है यहाँ पे, और आपको किसका फाइंड आउट करना है, RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह का इनकम टैक्सेबल होता है, एक इंडियन इनकम और दूसरा एक बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फॉरेन इनकम है बट कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, ये तो फॉरेन इनकम हुआ, तो वो RNOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, इसलिए ये तो आउट हो गया। नाउ इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कंपाला युगांडा कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली,
ये बिजनेस इनकम है, एक्चुअली ये भी फॉरेन इनकम है, बट फिर भी इसको टैक्सेबल किया जाएगा क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग है वो दिल्ली से हो रहा है। तो इवन दो इट इज अ फॉरेन इनकम, इसका कंट्रोलिंग इंडिया से हो रहा है, इसलिए वो आर एन ओ आर की कैटेगरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और तीसरा इनकम है डिविडेंड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ये तो क्लियर कट है कि ये तो इंडियन इनकम ही है, इसलिए ये तो सभी कैटेगरी में टैक्सेबल होता है। तो ये आपका टोटल 60 एंड 40 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। तो 25 का आंसर आएगा 1 लाख। सो आर एन ओ आर को 1 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। Mr. X received 7,04,600 as a rental income from owning a house property and also received 2,08,000 as a share of profit from partnership firm being a partner in previous year 22-23। अब देखो ये 26 में ऐसा बोला है कि उसको दो इनकम मिलता है, एक रेंटल इनकम मिलता है और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म मिलता है। अब देखो ये है ना नॉट टैक्सेबल है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म से शेयर मिलता है दैट मींस इट इज नॉट टैक्सेबल टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए उसको टैक्सेबल नहीं किया जाता, इसलिए ये तो आउट हो गया। अब इसका मतलब 7,04,600 उसी पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट 7,04,600। नाउ नेक्स्ट वन, कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू 58,000 दिया है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 2,000 है एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट है 3,000। अब देखो मैंने आपको बहुत यहाँ पे याद रखने का है कि जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता ही है, तभी आपको एनएवी मिलेगा। बट म्यूनिसिपल टैक्स कब माइनस होगा? व्हेन इट इज पेड। यहाँ पे दो वर्ड याद रखने का, वो पेड होना चाहिए, पेएबल नहीं होना चाहिए। पेएबल होगा तो भी माइनस नहीं मिलेगा, एंड पेड बाय ओनर होना चाहिए तो ही डिडक्शन मिलता है, उसी का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे टेनेंट ने जो पे किया है 3,000 उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आपको 2,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो 58,000 जीएवी है, उसमें से 2,000 आप माइनस करोगे, यू विल गेट 56,000 एज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसिस ए if her residence status for the assessment year 23-24 is resident and ordinary resident in India। ये ROR है। अब इसमें आपको जो भी इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है सभी में टैक्सेबल हो जाएगा। सो पेंशन है 8,24,000 फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर इन यूके रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया हुआ। इनकम ऑफ 5,60,000 अर्न फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन रिसीव्ड इन इंडिया, ये भी इंडियन इनकम माना जाएगा बिकॉज ये भी रिसीव्ड इन इंडिया हो गया। एंड पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, ये इनकम ही नहीं है बिकॉज इट इज अनटैक्स प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, इट इज नॉट कंसिडर एज ए इनकम एट ऑल। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म सिचुएटेड इन मुंबई, ये पहले भी पॉइंट आ गया है कि अगर आपको कोई भी शेयर पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता है तो इट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। तो ये दो इनकम माइनस हो जाएगा, तो अब आपका ROR के लिए कितना टैक्सेबल हुआ? 8,24,000 5,60,000, दोनों का टोटल करोगे आप तो 13,84,000 आएगा। Now Bindu purchase 29, Bindu purchase is a house property situated in Vadodara from Sangeeta on 20th February 2023 for consideration of 30 lakh। Stamp duty value of same property is 32 lakh 50,000। तो यहाँ पे आपको देखो परचेज कंसिडरेशन 30 लाख है और उसका आपको 110% करना है, 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो 33 लाख आएगा। फिर आपको एक्चुअल व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 32,50,000। तो आपको देखना है कि एक क्वेश्चन पूछना है कि वेदर माई परचेज कंसिडरेशन एसडीवी, वेदर माई एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ पीसी, क्या आपका एसडीवी है वो 110% से ज्यादा है? नहीं है। देखो आप एसडीवी आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 32,50,000 बट आपका 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन 33 लाख है, इसका मतलब ये पहला आंसर आ गया आपका नो। दूसरा कि आपका एक्चुअल डिफरेंस कितना है, तो एक्चुअल डिफरेंस तो 3 लाख का है, एक्चुअल डिफरेंस आपका 3 लाख का है, बट ये एक आंसर नो में आ गया, इसका मतलब आपका यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो वापस मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपका
purchase consideration 110% of purchase consideration is more than 30 SDV और उसका आंसर अगर नो में आता है तो जैसे SDV वेदर माई SDV देखो वापस मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वेदर माई SDV इज मोर देन 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन तो आंसर इज नो कि मेरा SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 110% ऑफ परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा नहीं है इसका मतलब ये टैक्सेबल नहीं आएगा फिर आपको एक्चुअल डिफरेंस 3 लाख है उसको कंसिडर नहीं करना है दोनों आंसर पहला आंसर यस आना चाहिए और ये जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा आना चाहिए तो 50,000 से ज्यादा डिफरेंस तो आ गया बट पहला आंसर नो आया इसलिए यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं हुआ तो इसके लिए इसका आंसर आया आपका नील नाउ नेक्स्ट वन द ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज सिंपल है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जहाँ पे इनकम टैक्सेबल होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं एंड द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर तो इसलिए यहाँ पे आएगा असेसमेंट ईयर और यहाँ पे आएगा प्रीवियस ईयर okay this is the answer for a whole paper if you have still doubt in any of the explanation you can write down in a comment box I will try to make reply for the same thank you very much for watching my video till end have a nice day bye